Last few hours are now left for GATE 2024 and I'm sure आप में से बहुत लोगों के मन में थोड़ी नर्वसनेस होगी, थोड़ी अनसर्टेनिटी होगी. ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे who are extremely confident, they have been performing good throughout, they have completed everything, they have prepared everything, solved many questions, they might be very confident also. ऐसे भी कुछ होंगे जो बहुत कॉन्फिडेंट है एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग नर्वस कि यार ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा हूं क्या, है ना. ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे हु आर फेड अप विद स्टडीइंग, बहुत पढ़ रहा हूं यार, पढ़ा ही जा रहा हूं, पिछले 2-3 साल से पढ़ रहा हूं, नाउ जस्ट आई एम डन, आई जस्ट वांट टू रेस्ट. एग्जाम लो मेरा गेट का और मुझे रेस्ट करने दो थोड़ा. एटलीस्ट मैं इस फेज में था, आई वॉज इन दिस लास्ट फेज कि भाई अब माफ करो, अब एग्जाम ले लो मेरा, उसके बाद मुझे रेस्ट लेने दो कुछ महीने. दिस इज द फेज आई वॉज इन, दिस इज द माइंडसेट आई वॉज इन. बट एज आई टोल्ड यू, different students may have different mindsets. It's perfectly okay to be nervous. It is perfectly okay to feel slightly scared. कैसा होगा एग्जाम, अच्छा होगा कि नहीं होगा. आई एम श्योर बचपन से अब तक बहुत से एग्जाम हम सब ने दिए हैं और दिस फीलिंग इज नॉट न्यू और स्ट्रेंज टू अस, राइट. बट ये एग्जाम थोड़ा अलग है ना. दिस एग्जाम इज फॉर योर करियर, फॉर योर जॉब, विच कैन ड्रास्टिकली चेंज the trajectory, the speed of your career. So definitely nervous hona normal hai. In this video, I will be discussing some of the things with you which will make you more comfortable, more confident. They might reduce your pressure towards the exam and it will ensure that you perform your best in GATE 2024. At this point of time, You should not think about what can go wrong. क्या गलत हो सकता है, आप ये सोचना आप बंद करो. ऐसे तो आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए what can go wrong, but still during preparation we have to focus on our weakness also. What am I lacking? कहाँ मैं पीछे रह रहा हूँ? All these things you have to think and improve, right? But now is not that time. Now you have to stop thinking about what can go wrong. You have to stop thinking about your weaknesses. और अब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचना है. यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स. यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट कैन गो राइट. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट रिलीजेस द प्रेशर ऑफ योर माइंड. इफ यू विल कीप थिंकिंग अबाउट अरे वो नहीं पढ़ा, वो टॉपिक में थोड़ा कम प्रिपरेशन हुई, दैट टॉपिक आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड एनफ, दिस विल जस्ट बिल्ड मोर एंड मोर एंड मोर प्रेशर ऑन यू विच विल 100% हार्म योर परफॉर्मेंस इन गेट. Even the things that you know that you are comfortable in, pressure होने से in those questions also your performance will decrease. Silly mistakes may happen. That is why now is the time to enter into the positive mindset. अगर अब तक नहीं, if you were not in positive mindset so far, now is the perfect time. And now some of you will be thinking that sir, how can we relax? It is such an important exam. Our career, our life depends upon this exam. प्रेशर तो है सर, बहुत प्रेशर है, आई कैन अंडरस्टैंड. बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इफ यू विल नॉट टेक actionable steps to reduce your pressure and if you will keep mounting more and more and more pressure and stress, your performance will go down, your silly mistakes will increase. So how can you relax? Look, let me tell you one thing which is extremely practical and true, 100% true. If you are someone who is hardworking, if you are someone who is disciplined, if you are someone who constantly thinks about what can I improve, how can I get better, I am guaranteeing you, no one can stop you from getting the success in your professional as well as your personal life. एक एग्जाम, एक गेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. I am talking in general about you. What do you think? If you got All India Rank 1 and you will join some company, some PSU, maybe you will go for higher studies and then join some company. What do you think? How are they going? What are they going to expect from you? क्या आप वहाँ जाके ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा, मैं डिसिप्लिन नहीं रखूँगा, मैं इम्प्रूव नहीं करूँगा, मेरी रैंक 1 आई थी ना इसीलिए. What do you think? चलेगा ऐसे सिस्टम? क्या कंपनी आपसे रिटर्न में मेहनत एक्सपेक्ट नहीं करेगी? क्या आपसे डिसिप्लिन और इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करेगी जस्ट बिकॉज आप एग्जाम में रैंक 1 लाए थे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा. अगर आप ऐसे हैं कि यार जैसे तैसे करके मैं रैंक ले आऊं फिर तो मैं चिल मारूंगा एकदम, तो लेट मी टेल यू, यू विल स्टार्ट फेसिंग
छोटे बड़े इश्यूज इन योर करियर एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ. सो दैट इज वाई मैं हमेशा से बोलता आया हूं, इफ यू आर फॉलोइंग मी, maybe on the YouTube channel, maybe in the courses that in the Exergy courses, maybe in my guidance webinars, मैंने ऐसा आज तक नहीं कहा है कभी भी कि ये एग्जाम क्रैक कर लो फिर तो लाइफ सेट है. मैंने आज तक नेवर एवर आई हैव सेड दिस. ऑलवेज आई हैव सेड दिस दैट यू शुड बिल्ड दिस हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, ऑफ बीइंग सिंसियर, ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड, ऑफ इंश्योरिंग दैट आपका फोकस हमेशा इंप्रूवमेंट पे. आज की डेट में भी मेरा पूरा फोकस, मैं आज की डेट में भी ऑन अ रेगुलर बेसिस, नॉट ओनली इन द कोर्स, नॉट ओनली इन द एक्सर्जिक, बट ऑल्सो इन माई पर्सनल लाइफ, आई कीप थिंकिंग कि यार और क्या इंप्रूव हो सकता है. इट कुड बी रिलेटेड टू माई हेल्थ, द वे आई थिंक, द वे आई टॉक, द वे आई बिहेव. इट कैन बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. मुझे जरूरत नहीं है, मेरे लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफ I start being rude, if I don't care about anyone else. Trust me, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे लाइफ पे. बट स्टिल मैं हमेशा इस हैबिट में रहता हूं कि और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं. और ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से सीखते हो किसी एग्जाम से. व्हेन यू राइट एन एग्जाम, व्हेन यू प्रिपेयर. मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि गेट इज द ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉपरली. उस पूरी जर्नी से आप डिसिप्लिन सीखते हो. जैसा मैंने जो पॉइंट बताया ये आप सीखते हो और वो आपकी एक लाइफ स्किल है. अगर आप में वो लाइफ स्किल है, इफ नॉट इन गेट, इन मेनी अदर एग्जाम्स विच आर गोइंग टू कम आफ्टर गेट, इफ नॉट दिस अटेम्प्ट ऑफ गेट, मे बी द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ गेट, यू विल 100% सक्सीड अगर आप में ये क्वालिटीज हैं और जो आपको एग्जाम सिखाता है. सो इवन इफ मानिए कि आपकी अगर रैंक नहीं आए, अच्छी रैंक नहीं आए, life is not over for you. Life will give you many more chances, and if I am repeating, if you are hardworking, if you are disciplined, if you constantly think about improvement in your skills, in your knowledge, trust me, आप life में successful होगे, चाहे वो professional हो या personal life हो. इसीलिए सबसे पहले आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मेरा ये हुआ गेट में, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गए, अगर ये हुआ तो वो हो जाएगा. ये सब सोचना आप बंद कर दीजिए. आपने आई एम श्योर अब तक बहुत मेहनत की, अच्छे से प्रिपरेशन की, अपना बेस्ट दिया और वही आपको करना है. आज भी, कल भी, गेट के दिन भी और उसके बाद भी. इसीलिए अलग से जो आप प्रेशर किसी एग्जाम का ले रहे हैं, स्पेशली गेट का ले रहे हैं, आई विल आस्क यू टू नॉट थिंक अबाउट इट. अच्छा सोचिए, रेस्ट कीजिए, हेल्दी खाइए, मेक श्योर करिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि टाइम पे पहुंच जाऊं मैं सेंटर पे, और ये सब चीज़ें आपने प्लान करके रखी हुई हैं. इन टाइप की चीज़ों से स्ट्रेस ना आने लग जाए आपको कि अरे लेट हो रहा हूँ, सेंटर पहुंचना नहीं, सेंटर दूर है, टाइम पे नहीं. ये सब चीज़ों से स्ट्रेस बढ़ेगा ऑब्वियसली. आई एम श्योर आप इतने समझदार हैं, आप इतने सिंसियर हैं, बच्चे नहीं हैं कि यू हैव नॉट प्लान्ड ऑल दीज थिंग्स. So have faith in yourself, have faith in the hard work that you have done, and make sure that you will give your best every day, even on the exam day, obviously. जो भी क्वेश्चन होगा अपनी बेस्ट नॉलेज से you will try to answer it. फुल फोकस के साथ you will be reading the question, you will be solving, you will be calculating. अपने दिमाग में यहाँ वहाँ की चीजें नहीं आने देंगे. फोकस के साथ पूरे 3 hours you will try to finish the paper with whatever strategy you have worked upon. I wish you all the best. और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है अगर अभी भी, तो make sure that you can comment in this video. मैं पर्सनली कोशिश करूँगा that हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ. कोई आपके माइंड में अभी भी डाउट, शंका, क्वेरी, दुविधा, समस्या अगर आपको फील होती है, make sure to comment. I'll reply. I wish you all the best.